पे लगा दें ब्रो। थैंक यू। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा dear devotees, welcome back for our discussion on Nectar of Instruction Bhakti Shastri course, and we have covered till text number 4, 3 and 4 we are covered half, and we'll just recite the shloka and then quickly revise what we saw and then we'll go ahead. So Rup Goswami, just to give you a brief background, first was he's inviting everybody to become guru. That means anybody having any small proclivity to control. So he's inviting, come, I'll tell you how to control. First, you try to control yourself by Vacho Vegam, Mansa Krodh Vegam, Jiya Vegam, Udaru Past Vegam. And then, if somebody asks, how to do that control, it's very difficult to control these 6 urges. Then he says, okay, don't worry. What you can do is follow some do's and don'ts. So, what are those don'ts? Atyahar prayasasya prajalpunyamagraha jana sanghasya lolamcha. Don't do all these things. And what you should do? Utsaha nishya dharya tat tat karma pravartanat sangatyaga satovrite. So, when you do these 2 things, you will be able to gain control over the urges. Then somebody asked, but how I can follow these favorable things and give up unfavorable things? I know that I should give it up. I know that I should follow, but actually speaking now, it's very difficult. Then Rup Goswami says, don't worry, I'll tell you the simple way, that is through association. So somebody asked, what is this association? You have told 2 times, and 3 times rather, and give up the bad association, take up the good association, and also take up the tendencies of those who are satovrite, who are sadhus. But what does this association means? Then Rup Goswami says, come, let me tell you. The association means Dadati pratigramnati guhyam akhyati prichati bhungate bhojate cheva shadvidam priti lakshanam. Offering gifts in charity, accepting charitable gifts, revealing one's mind in confidence, inquiring confidently, accepting prasad and offering prasad are the 6 symptoms of love shared by one devotee and another. So this what Rup Goswami is telling association means. And we discussed last time, of course, we saw this breakup of the shloka. And then we also saw that how bhakti is very much depending upon association, devotees, priti lakshanam. Priti means when we are actually developing that affection towards each other. What are the lakshans? These are the 6 lakshans. And Rup Goswami, earlier he was discussing about indirect means of nourishing bhakti, but now he's talking direct means. Association is the limb of bhakti. We saw that how even Rup Goswami includes this in his one of his limb. But how to do that association? With whom to do that association? So then we saw last time it has to be between like-minded, affectionate, and advanced devotees. And how many such friends we should have? What was the count? Five. Five. Ah, 5 is best. To begin with, at least you should have 1, 2, or 3, or 4, whatever, no problem. But 5 is the best. And then we saw this example of Lord Ram and Sugriva. Then we discussed some general definitions of all these activities. And then we saw that how, when we want to develop these 6 exchanges, according to what definition Prabhupada is telling, we need to have certain attitudes. And what was the attitudes? So we discussed in that experience part, said one who will be able to give gifts and charity to others, one who is feeling gratitude, who will be able to accept service or accept things from others, one who is feeling humility, who will be able to reveal his mind when we develop trust,
How we will inquire when we will think that I don't know anything, I am vulnerable, I want to grow in my life. Who will honor prasadam? बोलो प्रो जी सब लोग. ना. Honoring prasadam in the sense accepting the remnants offered to Krishna for purification. Serving prasadam when we want to offer some services. So all these things are very important, and then we saw that how Prabhupada writes, this is required in ordinary life also. But only difference is, we saw spiritual and material friendship. In ordinary life, people give gifts for impressing. In devotional life, people give gifts for expressing the bhakti. In ordinary friendship, also people accept meals just to develop some friendship. But here we accept prasadam for purification. Very important thing. Similarly, people in ordinary ways share their plans, just for the sake of sharing. But here we share our hearts, and so on and so forth. And then finally, all of you became GBC of a temple and brought very less maize and beans so that devotees can do the tati pratigranati goyamakyati puchati bhungate bhojate cheva. Surely, all of us should learn more from our senior devotees, how much they are, in one sense, taxing their brain to make sure that all of us perform these activities. So now, going ahead, we can see Srila Prabhupada writes that how, when these 6 activities are performed, that is a sure means of success. Not only that, in our ISKCON movement also, all these activities have been performed. That's why we have grown so much, and it is growing also. And alone, if somebody thinks that he will advance alone, then that is very difficult part to choose. We saw that example in Sato Vritte, that how one should follow the paths of previous acharyas. One should not try to develop his own path. Otherwise, it will be Shrama eva hi kevalam. Correct. So now let us go ahead and let us try to see. I have divided that conversation into little different format. So Prabhupada is telling that how our community in ISKCON is actually able to make impact in the life of a people by the method of these 6 exchanges. So dear devotees, if you want to go out and distribute books, if you want to go out and preach, or if we want to even relish ourselves, these 6 exchanges are very important. And in this conversation, you will find Prabhupada tells. So actually, Prabhupada tells in the paragraph I have made in the form of conversation. We need 2 devotees who can read this conversation. Any 2 devotees? हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण जी. हरे कृष्ण कौन है? Okay, Pavan Prabhu, Aman Prabhu. ठीक है. So fine, I'll tell who can become who. Okay. So Rohan can become Pavan Prabhu and Madhav can become Aman Prabhu. ठीक है. So Rohan and Madhav, one by one, you both can read. Yes, please start. Madhav, ISKCON is expanding all over the world. How is this happening so fast? It's actually very simple. The International Society for Krishna Consciousness has been established to facilitate these 6 kinds of loving exchanges between devotees. And these exchanges are so powerful that they make spiritual friendship grow everywhere. 6 loving exchanges? What does that mean? Let me explain. In the beginning, ISKCON was started single-handedly, but as people joined and started dealings with the give and take policy, the society began expanding globally. Because whenever there is genuine affection, people naturally being exchanging things lovingly. Correct. So we'll go slide by slide. But first thing what Prabhupada is telling is that International Society for Krishna Consciousness has been established to facilitate these 6 kinds of loving exchanges between devotees. That means what? Prabhupada is, in one sense, and we can see also in the 7 purposes of ISKCON, one of such kind of purpose where devotees come together and have 7 loving exchanges or 6 loving exchanges. है ना? तो हमको समझना चाहिए कि एक्चुअली प्रभुपाद भी चाहते हैं कि हम सब लोग ये 6 लिविंग एक्सचेंजेस करें. कभी कभार डिवोटीज को गलत फहमी हो जाती है एंड दे थिंक कि मैं अपनी साधना करता हूँ, अपनी सेवा करता हूँ, दैट्स इट. लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है. हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वर्स में जब ये 6 लिविंग एक्सचेंजेस करने हैं
तो सबके साथ करना है या कुछ कुछ लोगों के साथ नहीं करना है। तो उसमें रूप गोस्वामी 3 लेवल्स ऑफ डिवोटीज बताते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो कनिष्ठ जो होता है उसकी ये मेंटेलिटी रहती है कि मैं अपने अपना सोचता हूँ बस। बट एक्चुअली प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस्कॉन सोसाइटी का पर्पस ये नहीं है। उसका पर्पस है कि वी हैव टू कम टुगेदर एंड डू 6 लिविंग एक्सचेंजेस। एंड प्रभुपाद बोल रहे ये इतने पावरफुल है, इट मेक्स स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप ग्रो एवरीवेयर। सो बाय दिस एक्चुअली प्रभुपाद जी एक जगह बोले कि वी कैन कॉन्कर द होल वर्ल्ड बाय द कल्चर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो कल्चर क्या है? कल्चर इज दिस थिंग, कल्चर इज when we are having this friendship, spiritual friendship, that will attract the devotees. What is the definition of culture? So we were hearing the definition of culture means 3 things. Pehla, it has been decided by our superiors. Dusra, we all accept it. Third, it helps us to grow spiritually. This is a culture. So anywhere, any community, any society we want to grow, it will grow very powerfully if we follow this culture. तो आप कहीं पे भी हैं, किसी भी जगह पे भी है, आपके घर का भी है, तो एक कल्चर होना चाहिए। कल्चर क्या है? सी इसलिए कल्चर अलग अलग जगह का अलग अलग हो सकता है, बट कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए। फाइनल थर्ड थिंग होना चाहिए ग्रो करने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि किसी टेम्पल से आप एसोसिएटेड है एंड दैट टेम्पल इज प्रमोटिंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन, देन वी शुड बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन बुक डिस्ट्रीब्यूशन। अब वहां जाके आप सोचेंगे एक्चुअली ना चैंटिंग इज द एसेंस, आई शुड चैंट। बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो नियोफाइट लोगों के लिए ना, जिसका हार्ट प्योरीफाई होना है, मैं तो एलिवेटेड हूँ। बस फिर आप काउंटर कल्चर हो गए, है ना, एंटी कल्चर हो गए, फिर ग्रोथ नहीं हो पाएगा, है ना। वैसे ही आप देखेंगे हमारी वॉइस में भी एक कल्चर रहता है, वॉइस का भी एक कल्चर है जहाँ पे हम रह रहे हैं, या फिर हमारे घर का, अगर कोई गृहस्थ आश्रम है तो उसके घर का एक कल्चर है। तो कल्चर मतलब क्या है? सब लोग साथ में आके, जो सीनियर मोस्ट मेंबर है उसको कुछ पर्टिकुलर नियम कानून डिसाइड करने चाहिए बेस्ड अपॉन शास्त्रास ऑफ कोर्स, और सब लोग एक्सेप्ट करने चाहिए कि हम सब ये फॉलो करेंगे। और किसके लिए? साथ में एडवांस करने के लिए। तो जब वॉइस में भी हम सब साथ में आते हैं, वी डू, ठीक है, विल डू मॉर्निंग प्रोग्राम, विल डू साधना, एंड विल डू दिस प्रीचिंग, विल डू दिस सर्विस। सो व्हेन वी एग्री टू फॉलो, दैट मेक्स अ कल्चर, and same culture is expected by Srila Prabhupada in ISKCON of spiritual friendship. So if we are part of ISKCON, then we should agree to Srila Prabhupada's this advice. And उसका impact Prabhupada जी बता रहे हैं। ISKCON was started single-handedly, but as people joined and started dealing with the give and take policy, है ना, the society began expanding globally. Because whenever there is genuine affection, people naturally begin exchanging things lovingly. So we can see, can any one of you recall any such give and take policy which Prabhupada applied in the starting of ISKCON? Please, quickly. Like I remember, Prabhupada was earlier feeding the prasadam on his own 15 course meal. And then one day devotees asked कि स्वामी जी आप अकेले कुक कर रहे हो? प्रभुपाद ने हाँ हमारे आप भी आ जाओ, आप भी बनाना शुरू करो। प्रभुपाद ने उनको भी बनाने में लगा दिया। तो गिव एंड टेक, फर्स्ट ही वाज गिविंग, देन ही स्टार्टेड टेकिंग सर्विस फ्रॉम देम। एंड अनदर थिंग, एनी अदर एक्टिविटी विच यू फील प्रभुपाद ने इम्प्लीमेंट किया, गिव एंड टेक पॉलिसी? book distribution. बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज पावरफुल गिव एंड टेक पॉलिसी। प्रभुपाद जी बोला सीधा जाके भीख मत मांगो, आप डोनेशन दो, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, है ना। सो गिव एंड टेक, है ना। इनफैक्ट ये गिव एंड टेक से एक हमारे सन्यासी, बहुत बड़े सीनियर सन्यासी हमारे मूवमेंट को मिले, बहुत सारे मिले, उसमें से एक है चंद्रमौली स्वामी महाराज, है ना। उनको एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर गई, उनको बोला ये बुक से ले लो, तो वो बोले नहीं चाहिए मेरे को। तो उन्होंने बताया लेकिन ये बहुत स्पेशल इंडियन ऑथर की बुक है, उसने बहुत अच्छी चीज लिखी है, तो उसमें अच्छा दे दो। कितनी दोगे? एक के बाद एक के बाद इतने सारे बुक का स्टैक था, इतना बहुत सारा, वो पूरा का पूरा स्टैक उनके हाथ में रख दिया, और फिर वो बोला अभी पैसे दो। तो चंद्रमौली महाराज उस समय, महाराज नहीं थे उस समय, नहीं थे, कृष्णा कॉन्शियस में नहीं आए, तो बोले मेरे पर्स से ले लो। तो लेडी ने उनका पर्स निकाला, और पर्स से पैसे निकाल रही, और सारे पैसे रख लिए, और साइड से पुलिस वाला दिख रहा था, उनको लगा कि ये चोरी कर रही है, वो पुलिस वाले ने आके उसको पकड़ लिया, बोले क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो? एंड शी सेड नहीं नहीं मैं पूछ के निकाला। तो पुलिस वाले ने बोला क्या पूछ के निकाला क्या? तो चंद्रमौली महाराज बोलते उस समय हाँ पूछ के निकाला, लेकिन मेरे घर जाने जितने पैसे तो रख दो कम से कम।
है ना। तो उसने थोड़े से डॉलर्स रख दिए वापस, और फिर महाराज वापस गए, एंड देन ही बिकेम हिज होलिनेस चंद्रमौली स्वामी महाराज। सिमिलरली वी हियर अबाउट हिज होलिनेस जयप्रताप गोस्वामी महाराज। उनको कैसे जयानंद प्रभु ने रथ को बनाने के लिए लगा लिया। तो ये गिव एंड टेक एक्सचेंज, और बनाते हुए क्या उन्होंने प्रभुपाद का गुणगान किया, and that is how we got his holiness Jayapataka Goswami, and so on and so forth, so many devotees. Any other example? प्रभु जी, See, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी का वो आता है, वो कृष्णा बुक देते हैं प्रभु जी। और हम हाँ, डॉलर कुछ दिखाते हैं पैसा थोड़ा थोड़ा, लेकिन लेते नहीं। बाद में एक भक्त होते हैं तो सब रख लेते हैं, बोले लाओ, फिर कृष्णा बुक दे देते हैं। करेक्ट करेक्ट, उनको भी एक कृष्णा बुक दिया था। दैट इज हाउ ही आल्सो सॉ कृष्णा फर्स्ट टाइम, ब्लू कलर बॉय। करेक्ट। एनी अदर एग्जाम्पल? अपनी लाइफ से बता दीजिए, ठीक है। प्रभुपाद जी की लाइफ हमने इतनी नहीं पढ़ी लगता है। आपकी लाइफ में ये 6 एक्सचेंजेस हुए हैं किसी के? सिल्वर स्पून एग्जाम्पल, ओके। हिज होनेस इंद्रदुम्न स्वामी महाराज को प्रभुपाद जी ने सिल्वर स्पून दिया एज अ गिफ्ट। इनफैक्ट वो बैग भी बताते हैं ना, छोटा सा बैग था उनका, उनको बड़ा बैग दिया गया, तो बड़ा बैग भी दिया। करेक्ट, गुड। और कोई? इंद्र प्रभु जी। आइंदर प्रभु। यस प्रभु जी, उनको भी जहाँ तक याद आ रहा है बुक दिया था उनको भी। बुक, ओके, आइंदर प्रभु को बुक दिया गया था। करेक्ट वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ भी आए मंदिर में, फिर उसको छोड़ दिया बाद में, ऐसा फिर वो प्रोसेस हुआ। करेक्ट 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 करेक्ट। एक्चुअली अनटिल अनलेस वी डो नॉट अंडरस्टैंड कि हमारे को कितना जरूरत है ना, ये 6 लिविंग एक्सचेंजेस करेंगे नहीं। कलयुगा में ना ईगो प्योरिफिकेशन किसी को नहीं चाहिए, और जहाँ पे एक्सचेंजेस होंगे वहां पे ईगो प्योरिफिकेशन होगा। प्रभुपाद जी बोल रहे सिंगल हैंडेड सोसाइटी, इतनी बड़ी सोसाइटी बन गई है ना। दिस ईयर वी हैव 40 लाख भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन टारगेट। 70 करोड़ प्रभुपाद की भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है ऑलरेडी। इतनी बड़ी सोसाइटी सिंगल हैंडेडली बनी, प्रभुपाद क्रेडिट दे रहे हैं 6 लिविंग एक्सचेंजेस को। लेकिन हमको पता ही नहीं कि हमारे साथ कहाँ 6 लिविंग एक्सचेंजेस हुए हैं। प्रभु जी, वो जैसे हम मतलब कोई भी वॉइस में सेवा करता है और थोड़ा सा लीडिंग करता है, तो जो वॉइस के प्रीचर होते हैं तो उसको कभी कभी प्रसाद स्पेशल लेके देते रहते हैं ऐसा करके। तो उसमें प्रभु जी और So, स्पेशल गिफ्ट भी देते हैं। प्रभु जी, आप लोगों से आपके जीवन में कहाँ पे 6 लिविंग एक्सचेंज ये बताइए। प्रभु जी संकल्पा कैंप में, जब हमारा पहला कैंप था प्रभु जी, तो उसमें प्रसाद बहुत हाई क्लास था, मुझे बहुत सारा था। ओके, प्रसाद बहुत हाई क्लास था। करेक्ट या तो ये हम लोग, हाई। मैं जब हम लोग कैंप्स में आते हैं तो काफी क्वेश्चंस जैसे देते हैं, बाहर कोई आंसर नहीं देता, लेकिन हम क्वेश्चन पूछे प्रभु जी से तो प्रभु जी ने बहुत पर्सनल टाइम दिया, गंगा जी के किनारे घुमा के ले गए, लगभग 2.5 घंटा तक आंसर देते रहे। तो बहुत बहुत टचिंग रहा। तो वो इसमें आता है कि कैसे मतलब हमने प्रॉब्लम्स बताया और सोल्यूशन दिया, ऐसे ही ओके, हम कुछ। गोया माक्याति पृच्छति आपके साथ हुआ, ठीक है। प्रभु जी, अभी जो भी बाहर से प्रीचर आते हैं टेम्पल में, तो प्रेम ही नाम प्रभु जी उनके लिए स्पेशल वो महाप्रसाद रखवाते हैं और डेली ब्रह्मचारी अरे को देते हैं। आपके साथ बताओ यार, प्रेम है नाम प्रभु क्या करते हैं ये मत मैं बताओ। प्रभु जी उसमें मैं थोड़ा पार्ट करता हूँ, वो सेवा प्रसाद लेके देता हूँ तो अपना। आप दूसरा प्रभु जी, जरूर कर रहे हैं, ग्रेट। ना मेरे साथ प्रभु जी हुआ, मैं जब टेम्पल में फर्स्ट टाइम आया था, तो एक रात कानपुर में रुका था एडमिशन के लिए, तो रात भर कुछ नहीं खाया। दूसरे दिन बहुत भूख लगी थी, तो मैं यहाँ आया, तो दूसरे दिन सुबह सुबह प्रशांत प्रभु जी मिल गए, और कुछ पूछताछ ज्यादा नहीं हुआ, वो लेके सुबह सुबह 9 बजे भागवतम क्लास के बाद प्रसाद हम हॉल में खड़ा कर दिए। ग्रेट, वो फिर प्रसाद तो मेरा भी। यहाँ पे मयंक प्रू लिख रहे हैं कि उनको बर्थडे गिफ्ट मिला। करेक्ट, बर्थडे गिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ददाति प्रति गणाति गुह्यम आख्याति भविष्यति भूंगते भोजते च। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं आगे। यस प्लीज कंटिन्यू। गिव एंड टेक लाइक गिफ्ट्स। Exactly. In fact, we are glad that people are donating very liberally to the development of the society's activities. And at the same time, people are also eagerly accepting whatever humble contribution we are giving them in the shape of books and magazines dealing strictly with the subject matter of Krishna consciousness. So giving and accepting gifts are two of the 6 exchanges. Yes, exactly. Two of them. But there is more. For example, we sometimes hold Hare Krishna festivals and invite life members and friends to participate in the feasting
by accepting prasad. Even people from high society come. Absolutely. Srila Prabhupada writes, although most of our members come from the higher rungs of society, they nonetheless come and take whatever little prasad we are able to offer them. That's another pair of loving exchanges, offering prasad and accepting prasad. That makes sense. And what about sharing the heart? This happens very naturally too. Sometimes the members and supporters inquire very confidentially about the methods of performing devotional service, and we try to explain this. So, revealing one's mind and inquiring confidentially, another two exchanges. Now I see how ISKCON builds community. All six exchanges are happening. Exactly, and that is why our society is successfully spreading all over the world, and the intelligentsia of the all countries is gradually appreciating our Krishna conscious activities because these exchanges nourish spiritual life. So this is not just a social activity. It's how people awaken devotion. Definitely, the life of Krishna conscious society is nourished by these six type of loving exchanges among the members. And Prabhupada emphasizes that people must be given association because simply by reciprocating in the sixth way mentioned above, an ordinary man can fully revive his dormant Krishna consciousness. That's powerful. Yes, even the Bhagavad Gita says, Sangat Sanjayate Kama, one's desire and ambitions develop according to the company one keeps. If someone associates with devotees, he will certainly develop his dormant Krishna consciousness. And the Sunday feast, is that part of it? Of course, the members of ISKCON invite the society's members and supporters to dine with them when they hold love feast in all their branches every Sunday. Many interested people come to honor Prasad. And not just that, whenever possible, they invite members of society to their homes and feed them sumptuously with Prasad. So both sides benefit from these exchanges. Exactly. In this way, both the members of the society and the general public are benefited. That is the beauty of Krishna consciousness. Everyone who participates grows spiritually. Madhav, now I fully understand how ISKCON spreads through love expressed in these six loving exchanges. Yes, Rohan, these are the heart of our movement. Correct. So actually, this what you just now read, it's just a two paragraphs of Prabhupada, है ना? We have made it into conversation, and we can see कि प्रभुपाद जी कितना विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि इन चीजों की वजह से हमारी सोसाइटी ग्रो करी है। तो बहुत जरूरी है कि हम डिवोटीज भी ये चीजें अपने लाइफ में लेके आए। प्रभुपाद बोले ऑर्डिनरी व्यक्ति को भी एलिवेट कर सकते हैं। और ये पावरफुली हार्ट है इस्कॉन का। So why we are reading this is because if you individually and collectively want to progress in bhakti, these six living exchanges are required. So one may think प्रभु जी मैं इंट्रोवर्ट हूँ। इंट्रोवर्ट मतलब मेरे को किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आप इंट्रोवर्ट रहिए, लेकिन इंट्रोवर्टनेस के साथ दो तीन लोगों को जोड़ लीजिए, क्योंकि आप इंट्रोवर्ट व्यक्ति भी अपने माइंड को जोड़ के रखता है, उसी से बात करता रहता है ना। तो माइंड के साथ साथ थोड़ा और दो तीन डिवोटीज को, ज्यादा मत जोड़िए, दो तीन को जोड़िए। कोई बोले मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं सबके साथ लविंग एक्सचेंज कर, हाँ सबके साथ करिए, लेकिन कुछ लोगों के साथ स्पेशल गुह्यम आख्याति पृच्छति स्पेशल ये वाले सिक्स लविंग एक्सचेंजेस करिए, है ना। एंड दैट इज व्हाट यू विल सी दैट हाउ wherever we are preaching and ourselves we can grow nicely. And this is the heart of our movement Prabhupada is mentioning, and that is what is required. Unfortunately, sometimes devotees, because they want to bring out result in their services, they compromise on these principles. And because they compromise on these principles, then they get short-term result, but long-term those results they don't stay with them. तो इसलिए हमको पता होना चाहिए that wherever we are, we should be striving for this six loving exchanges, and that is the heart of our movement. In a body, heart plays a very important role, correct? All other organs are very good, but if heart is problematic, what will happen?
We will get heart attack and we will die. Correct? So similarly, if we are distributing many books, we are preaching to many people, we are even collecting lots of amount of funds and making temples. But if the heart is not beating properly, if there are blockages in heart, then what will happen? And then even though hell and healthy society will fall apart. And that's what happened in times of Srila Bhaktisiddhanta Thakur with the Gaudiya Math. Everything was very flourishing. There were 60 centers of Gaudiya Math. Just imagine. 60 centers and all bubbling with sannyasis. And of course, many other devotees. And we heard 60,000 disciples by Srila Bhaktisiddhanta Thakur. But all, fell apart. Why? These 6 loving exchanges were missing. So we should be striving within our community to develop these 6 loving exchanges. And for that, there are various ways and means which devotees are doing. And we also try to conduct camps and this and that. They are not just coming and, being a meditator or a Prabhupada, the armchair speculator. All these things are not meant for such kind of activities. It is meant for developing these exchanges. Of course, that doesn't mean that we stop doing sadhana, we stop doing preaching, we stop doing book distribution. हार्ट अच्छा रहेगा, हाथ ही नहीं रहेंगे, पैर ही नहीं रहेंगे, तो क्या फायदा ऐसे शरीर का? करेक्ट? तो दोनों चीजें चलनी चाहिए, बट वी शुड अंडरस्टैंड कि ये हार्ट है हमारे मूवमेंट का. And that association can help us to elevate and degrade. This is the power of association. Prabhupada writes how association affects us. So he said, in good association, we get good thoughts. By good thoughts, we get good desire. And by good desire, our Krishna conscious life become good. And reverse is, in bad association, we get bad thoughts, we get bad desires. And in bad desire, our life become bad. This is the impact and power of association. So whatever is our desires, that is how it will happen. So now we all know that we all have Krishna consciousness within us. But why that Krishna consciousness we are not able to, fully practice? One of the main reason might be is the association. Therefore, Prabhupada writes further the importance of association. He emphasizes. Please, somebody else can read who has not read till now. Your love for Krishna is eternally established. Siddha Krishna Prem Sadhya Kabu Noy Shravanadi Shuddha Chitta Karaya Uday. Yes. Pure love for Krishna is eternally established in the heart of living entities. It is not something to be gained from another source. When the heart is purified by hearing and chanting, the living entity naturally awakens. Since Krishna consciousness is inherent in every living entity, everyone should be given a chance to hear about Krishna. Simply by hearing and chanting Shravanam Kirtanam, one's heart is directly purified. And one's original Krishna consciousness is immediately awakened. Krishna consciousness is not artificially imposed upon the heart, it is already there. When one chants the holy name of the Supreme Personality of Godhead, the heart is cleansed of all mundane contaminations. Correct. So यहाँ पे Prabhupada is mentioning कि heart is purified by hearing and chanting. And therefore everyone should be given this chance to hear about and chant Krishna's holy name. Then one will become purified. And then Krishna consciousness, which is dormant, it will grow. But how we will give that chance for a devotee to regularly chant and hear when we have these 6 living exchanges? You will find sometimes if we are having tussle with some devotees, then our mind doesn't focus on chanting. Rather, we are not able to read also. Whole time goes in contemplating how to tackle that situation. And if he says this, I will say this. If he says that, I will say this. So this is the impact of loving exchanges, or not having loving exchanges. So therefore, if we are not having loving exchanges, it is a kind of violence to other living entities. We are it is proving to be detrimental for their growth in bhakti. So therefore, neither we should develop some bad exchanges with devotees. Rather, we should be developing these 6 loving exchanges so that
more we develop, more we able to focus on hearing and chanting. Therefore, Prabhupada writes very good analogy. He says in this form, he says we all have Bhakti Lata Beej. Spiritual master has given us Bhakti Lata Beej. So that beej is given. Now we want to grow our Bhakti Lata, which has to grow. So for the growth of Bhakti Lata, we see that we not need water. Chaitanya Mahaprabhu said water is Shravan and Kirtan. Correct? Water is Shravan and Kirtan. But the Guru's Vani, Guru's instructions, they are like sunlight, which nourishes us. So if you're not continuously hearing Guru's Vani, then our plant will become pale and it will become yellowish. The functions will not happen nicely. So we should hear that sunlight, we should be properly hearing Guru's Vani. But most important thing is, if we are just hearing Guru's Vani, you tell me, all of you, if I have a plant, I take it out of the sand, soil, and I have full plant with roots and everything, and I put water on the roots also, and I show that plant sunlight, what will happen to that plant? He is hearing Guru's Vani, he is doing Shravan and Kirtan very nicely. What will happen? मुरझा जाएगा प्रदीप, है गुरुजी। अरे क्यों? श्रवण सूख कीर्तन जाएगा। है ना, वो उसको सनलाइट भी मिल रही है, Association, Pradeep. ऑयल नहीं है गुरुजी। तो In touch with devotee. Six senses is not able to do. श्रवण ही सार है, कीर्तन ही सार है, और उसके अलावा गुरु है ना, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात ना गति कुटोपी, है ना। आपने नहीं सुना ये सब सुबह सुबह गाते हैं हम लोग, गुरु के आदेशों को पालन कर रहा हूं मैं, श्रवण कीर्तन कर रहा हूं, और क्या चाहिए? Through the devotee association. All these things should be in devotee association. हाँ, एक्चुअली स्पीकिंग, ओके, कुछ मैसेज आया, प्रोजेक्ट वाटरिंग एंड न्यूट्रिशन सॉइल के थ्रू मिलेगा। ओके, यस, एक्चुअली स्पीकिंग ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है ना। सनलाइट इंपॉर्टेंट है, गुरु का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, श्रवण कीर्तन भी इंपॉर्टेंट है, पानी डालना, लेकिन ये सारी चीजें दे विल बिकम मोर, और जैसे जैसे चैट में बताया, वी विल बी एबल टू गेट नरिशमेंट थ्रू देम व्हेन वी आर इन व्हेन वी आर इन सॉइल. When we are in association of devotees, all these things will help us to grow or become spiritually nourished. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत बार डिवोटीज क्या करते हैं, वो बस गुरु है, गुरु गुरु गुरु, श्रवण श्रवण श्रवण, और भक्त वो चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो क्या हो जाता है, आप समझ जाना, ये एनोलॉजी हमेशा याद रखना फिर, है ना, कि आप वो प्लांट है जिसको बाहर निकाल के डायरेक्ट सनलाइट दिया जा रहा है और वाटर खूब दिया जा रहा है, लेकिन वो ग्रो नहीं करेगा क्योंकि सॉइल में नहीं है भक्तों के संग के. तो भक्तों के संग का सॉइल होना बहुत जरूरी है. In fact, some of the devotees, when they pass out, they need to go out somewhere for study, for jobs and other, जहाँ पे एसोसिएशन नहीं है, तो उनको समझना चाहिए कि मैं कितना भी वहाँ पे पावरफुली श्रवण कीर्तन कर रहा हूँ, बट आई मे नॉट बी प्रोग्रेसिंग नाइसली, आई नीड टू हैव एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. मेरे को संग में आना ही पड़ेगा भक्तों के. ये बहुत बड़ा इल्यूजन है कि मैं अकेले रह के भक्ति कर सकता हूँ. भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर ने तो इतना इसके ऊपर बोल दिया है, दुष्टा मना तुम्ही किसेरा वैष्णव, कैसे वैष्णव हो तुम, अकेले बैठ के भक्ति करने का सोच रहे हो, मारेंगे, है ना. तो ये इल्यूजन है बहुत बड़ा. बहुत बार डिवोटीज मतलब जॉब के लिए या फिर कभी पढ़ाई करने के लिए, ये बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, वो सोचते हैं मैं अपने घर पे रहता हूँ या अलग रहता हूँ डिवोटी से, और यहाँ पे मैं श्रवण तो कर ही रहा हूँ सुबह सुबह उठ के, और गुरु की वाणी भी सुन ही रहा हूँ, एडवांस करो. वो इल्यूजन है हमारा. उसको बोलते हैं प्रभुपाद की टर्म में फैंटास्मागोरिया है, क्योंकि आप भक्तों के साथ में नहीं आ रहे. एंड ये टेस्ट है भक्तों के साथ में आना, कैसे हम उनके साथ डीलिंग कर रहे हैं भक्तों के साथ में. आई टेल यू, देयर इज वन डिवोटी, आई वाज डीलिंग विद हिम. वो बचपन से वो डिवोटी परिवार में पैदा हुआ, और लेकिन उसको कभी एसोसिएशन का महत्व नहीं पता. तो उसको बहुत अच्छे स्किल्स है, उसको टैलेंट्स है, वो डीटी वर्शिप करता है, वो मृदंग करताल करता है, अच्छा कीर्तन कर लेता है, सब कुछ करता है, लेकिन जैसे ही उसको भक्तों के साथ कुछ सेवा देते हैं, लड़ाई कर लेता है, भक्तों के साथ सेवा नहीं कर पाता है. तो ऐसा ऐसा डिवोटी जो है, आप उससे पूछेंगे ना, उसका स्पिरिचुअल नरिशमेंट, उसका लेवल बहुत ही कम है, एंड ही इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, है ना. तो इसलिए हमको पता होना चाहिए, वी नीड एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, है ना. अगर एसोसिएशन नहीं है, प्रभुपाद जी बोले क्रिएट करो. क्रिएट नहीं कर सकते तो लॉन्ग करो एसोसिएशन के लिए, इच्छा करो कि मैं कैसे डिवोटीज के संग में आ सकता हूँ.
और उसके लिए जो प्राइस पे करना पड़े ना, पे करना चाहिए। एसोसिएशन से पावरफुल और कुछ नहीं है। हमको लग रहा है कि हम वहां पे ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अरे आप भक्तों के संग में आएंगे ना, कृष्णा विल डू बेस्ट फॉर यू। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर वर्किंग डिवोटीज आल्सो। तो कभी आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए, सो प्लीज काइंडली गिव दिस थॉट टू दिस एनालॉजी, कि मैं डिवोटीज के संग से बाहर हूँ। भले ही कितना श्रवण कर रहा हूँ, गुरु का आदेश ये सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन सॉइल नहीं है मेरे पास, वो ग्रो नहीं होगा, मेरा नरिशमेंट नहीं होगा भक्ति लता बीज, है ना। और फिर मैं इल्यूजन में रहूंगा कि मैं भक्ति लता बीज मेरा ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है, क्योंकि फॉल्स को ग्रो हो रहा है, भक्ति लता बीज ग्रो नहीं हो रहा है। सो इसलिए साथ में आके चैंटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद राइट समथिंग वेरी स्पेशल, इफ द मेंबर्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, पढ़िए कोई नीचे से। If the members of human society actually want peace of mind, tranquility, and friendly relations between man and nations, they must follow the Krishna conscious system of religion by which they can develop their dormant love for Krishna, the Supreme Personality of Godhead. As soon as people do so, their minds will immediately be filled with peace and tranquility. करेक्ट। सो ये जो हेयरिंग चैंटिंग है, प्रभुपाद इज नाउ कनेक्टिंग इट नॉट ओनली इन कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी, बट ही इज टेलिंग आउटसाइड कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी आल्सो। इतना पावरफुल है ये, संघ में आके श्रवण कीर्तन करना, बाहर वाले लोगों को भी फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? 4 केसेस प्रभुपाद राइट्स। एनिमल्स, एनिमल्स को सुकृति मिल जाएगी। अगर भक्त लोग साथ में आके चैंटिंग रीडिंग हेरी कर रहे हैं, साइड में कोई एनिमल्स घूम रहे हैं, दे गेट पाए सुकृति। एथीस्ट क्लास ऑफ पीपल, जब वो लोग देखेंगे डिवोटीज को चैंटिंग हियरिंग करते हुए, देयर हार्ट विल बिकम सॉफ्ट, देयर दैट स्केप्टिक मेंटालिटी, डाउटिंग मेंटालिटी विल बिकम सॉफ्ट। Ordinary people, when they will see devotees coming together and hearing and chanting, their heart will be purified. And when like-minded devotees come together and they will do hearing and chanting with this 6 loving exchanges, prema will awaken in their heart. So all society will get benefit by this. All human race will get benefit by this 6 loving exchanges. That is the power of the 6 loving exchanges. So therefore, we should be mostly focusing upon it. Now we're quickly coming to the end. In the end, our dear Bhakti Siddhanta Thakur, he says, just like there is the exchange of devotees, loving exchange are so powerful. Similarly, if we do these 6 loving exchanges with the wrong sangha, it is equally detrimental. Please, somebody can read who has not read. So we want to give chance to everybody to read, है ना? तो जिसने अभी तक नहीं पढ़ा, प्लीज पढ़िए। In this regard, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur warns all devotees engaged in broadcasting the Krishna consciousness movement not to speak to the impersonalist Mayavadi who are always determined to oppose such theistic movement. The world is full of Mayavadis and atheistic, and the political parties of the world take advantage of Mayavad and other atheistic philosophies to promote materialism. Sometimes they even back a strong party to oppose the Krishna consciousness movement. The Mayavadis and other atheists do not want the Krishna consciousness movement to develop because it educate people in God consciousness. Such is the policy of the atheists. There is no benefit in feeding a snake milk and bananas because the snake will never be satisfied. On the contrary, by taking milk and bananas, the snake simply become more poisonous. Kevalam Besa Bardhanam. If a snake is given a milk to drink, its poison simply increase. Correct. So actually now here what is happening is भक्ति संजय ठाकुर, इसलिए हमको रॉन्ग एसोसिएशन क्या है वो भी जानना चाहिए, और उन लोगों को प्रीचिंग नहीं करना चाहिए। अगर उन लोगों को हम प्रीचिंग करेंगे, इसलिए एक ऑफेंस है ना, टू प्रीच टू द फेथलेस पीपल। अभी कोई बोलेगा प्रोजी कैसे पता चलेगा फेथलेस है, मैं तो पहली बार जा रहा हूँ। ठीक है, पहली बार आप जाइए, लेकिन जैसे ही आपको उसके अंदर पता चले ही इज फेथलेस है, डोंट स्पेंड टाइम विद हिम, ही विल मोर बिकम एनवियस। that will happen. Similarly, he continues. Please read. Somebody else can read, Prabhuji's. For a similar reason, we should not disclose our minds to the serpent, Mayavadis and Karmis. Such disclosures will never help. It is best to avoid association with them completely and never ask them about anything confidentially because they cannot give good advice. Nor should we extend invitation to Mayavadis and
atheists, nor accept their invitations, for by such intimate intermingling, we may become affected by their atheistic mentality. Sangat sanjayate akama. It is the negative injunction of this verse that we should refrain from giving anything to or accepting anything from the Mayavadis and atheists. Sri Chaitanya Mahaprabhu has also warned Bisira Nakhila Dushayaman. By eating food prepared by worldly people, one's mind becomes weak. Unless one is very advanced in the advance, he is unable to utilize everyone's contribution to further the Krishna consciousness movement. Therefore, on principle, one should not accept charity from the Mayavadis or atheists. Indeed, Sri Chaitanya Mahaprabhu has forbidden devotees to associate even with ordinary men who are too addicted to material sense gratification. करेक्ट। तो यू में से प्रभु जी हम तो प्रीचिंग करने के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए भी करिए, वार्निंग तो वार्निंग है, कॉशन तो कॉशन है कि अगर हम करेंगे ना वी में आल्सो गेट अफेक्टेड अनटिल अनलेस वन इज वेरी एडवांस। वेरी एडवांस कैसा एडवांस होना चाहिए? वो चैतन्य महाप्रभु जैसा एडवांस होना चाहिए, है ना। चैतन्य महाप्रभु गए थे काशी में, वहां पे मायावादी प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर के पास, प्रकाशानंद सरस्वती के पास गए और उन सबको ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ऐसा अगर कोई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभुपाद जी गए, उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। लेकिन हम लोग उस लेवल पे अगर कोई नहीं है तो हमको वैसा बचना चाहिए। तो एक्चुअली इस ये क्या अगले वर्ष में भी हम डिस्कस करेंगे। उत्तम अधिकारी जो है वो किसी के भी साथ एसोसिएट करे कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसको, है ना। लेकिन मध्यम अधिकारी जो है उसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिस्टिंग्विश करना। एंड ये जो वर्ड्स है 6 लिविंग एक्सचेंजेस के लिए, ये हमको सिखाया जा रहा है। प्रभुपाद इज एक्सपेक्टिंग दैट वी शुड कम टू द लेवल ऑफ मध्यम अधिकारी। वी रेज आवरसेल्फ फ्रॉम कनिष्ठ टू मध्यमा। इन नेक्स्ट वर्स वी विल सी कि कनिष्ठ अधिकारी इज मोस्टली डीलिंग विद मैं भगवान गुरु, बस भक्तों को उसको जरूरत ही नहीं होती। लेकिन भक्तों की इंपॉर्टेंस जिसको फील होने लग जाती है, ही एडवांसेस टू मध्यमा लेवल। एंड फॉर सच पीपल who are at Madhyama, the caution is given, don't go and do such exchanges with people who are Mayavadis or materialistic. Otherwise, we will also get that tendencies. One should not eat Vishera Anna Khaya Dushtahay Man. One should not take donations also from such people. Of course, if they come and put in the temple only, that's all right. But one should be very careful. Because जैसे हम किसी से डोनेशन लेंगे, लिविंग एक्सचेंज हो रहा है ना, तो फिर अगली बार वो भी हमको कुछ मांगेगा तो हमको भी कुछ करना पड़ेगा, और फिर वहां पे हम क्या फंस जाएंगे। तो एक बार हम जा रहे हैं, हो गया, अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूट किसी को भी करो क्योंकि उस व्यक्ति को बार में आप मिलने वाले नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कंटिन्यूअस सच काइंड ऑफ एक्सचेंजेस वन शुड नॉट डू। कंटिन्यूअस एक्सचेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंटिन्यूअस में क्या है, एक बार वो आपको देगा तो आपको भी देना पड़ेगा, फिर ऐसे क्या है रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, फिर गुह्यम आख्याति पृच्छति भी हो जाएगा। आई थिंक आई टोल्ड मेंशन कि जो 6 प्रिंसिपल्स है इसमें हमारे आचार्य लिखते हैं कि भोगते भोजते चैव और गुह्यम ददाति प्रतिगृह्णाति, ये 4 प्रिंसिपल सिर्फ एक प्रिंसिपल को करने के लिए बताए गए, वो है गुह्यम आख्याति पृच्छति। मतलब जब ये 4 प्रिंसिपल हम करेंगे तो नेचुरली गुह्यम आख्याति पृच्छति हो ही जाएगा। तो इसलिए हम अगर ये मायावादी के साथ करेंगे तो वी में आल्सो गेट अफेक्टेड। एंड इफ यू रियली वांट टू रीच टू द लेवल ऑफ मध्यमा, अगर कोई उत्तम अधिकारी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन अगर आप मध्यमा लेवल पे आना चाहते हैं, वी शुड बी केयरफुल। एंड देन फाइनली प्लीज रीड। The conclusion is that we should always keep company with devotees, observe the regulative devotional principles, follow in the footsteps of the तो मैंने आपको बोला कोई नया डिवोटी पढ़िए जिस सो दैट सारे डिवोटीज जग के रहे। तो प्लीज उनके ऊपर कृपा करिए, है ना। हर बार नया डिवोटीज प्लीज पढ़िए, नहीं तो मैं ही पढ़ लेता हूँ सारा कुछ और क्लास खत्म कर देते हैं, है ना। प्लीज somebody else can read. Then conclusion is that we should always keep company with devotees, observe the regulative devotional principle, follow in the footsteps of the acharyas, and in full obedience carry out the orders of the spiritual master. In this way, we shall be able to develop our devotional service and dormant Krishna consciousness. The devotee who is neither a neophyte nor a Mahabhagavat, a greatly advanced devotee, but is within the middle status of
devotional service is expected to love the Supreme Personality of Godhead, make friends with the devotees, shows favor to the ignorant, and reject the jealous and demonic. करेक्ट। तो नियोफाइट डिवोटी ये सब नहीं करेगा। महाभागवत उसको जरूरत नहीं है, करना चाहे तो कर सकता है, बट अगर कोई मिडिल स्टेटस का डिवोटी उसके लिए बहुत जरूरी है। एंड प्रभुपाद इन द बिगिनिंग इज टेलिंग द कंक्लूजन इज दैट वी शुड ऑलवेज कीप कंपनी विद डिवोटीज, और फिर बता रहे कीप फॉलो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड फॉलो द आचार्यस इन फुल ऑबिडियंस, है ना। देन वन वी विल बी एबल टू डेवलप डिवोशनल दैट डॉर्मेंट कृष्णा कॉन्शियस विद इन हार्ट। तो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, somebody else can read. According to the Dadati principle, an advanced devotee is supposed to spend at least 50% of his income on the service of the Lord and his devotees. Srila Rupa Goswami has set such an example in his life. When he decided to retire, he distributed 50% of his life's earning to Krishna's service and 25% to his relatives, and kept 25% for personal emergencies. This example should be followed by all devotees. Whatever one's income, 50% should be spent on behalf of Krishna and his devotees, and this will fulfill the demands of the Dati. एक्चुअली स्पीकिंग प्रभुपाद एक बहुत बड़ा हिंट दे रहे हैं हमको। वो हिंट क्या दे रहे हैं? लास्ट में ये अचानक से ददादी क्यों बोलने लगे? करेक्ट कंक्लूजन तो दे दिया पिछले 2 पैराग्राफ्स में, प्रभुपाद जी के परपुट के पैराग्राफ है, मेरे नहीं है। लेकिन लास्ट में ये एक अलग से पैराग्राफ क्यों डाल दिया? क्योंकि प्रभुपाद वांट्स टू एम्फसाइज वन मोर थिंग कि ये जो मध्यम अधिकारी का और या जो मिडिल स्टेटस का जो डिवोटी है, it is expected from him what standard? The standard which Rupa Goswami followed. 50% of his income should be spent in service of the Lord and his devotees, because otherwise if he is too much collecting and just keeping with himself, then either he will fall prey to atyahar and prayas, or he may lead to lolyam, he may get some greed because of that. So therefore he should be giving and spending this 50% in service of the Lord and his devotees. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एज अ डिवोटीज, क्योंकि प्रभुपाद जी एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स बाहर निकाल रहे हैं। प्रसाद तो हर कोई ले लेगा, थोड़ा बहुत माइंड भी शेयर कर देगा, बट उसको ददाती प्रिंसिपल के अंतर्गत अपना अर्निंग को भी स्पेंड करने का मन करना चाहिए, है ना। एंड प्रभुपाद दिस एग्जाम्पल शुड बी फॉलोड बाय ऑल डिवोटीज whatever one's income. ऐसा नहीं बोल रहे प्रभु जी मेरा 3 लाख का पैकेज है इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा एक बार 50 लाख का हो जाएगा फिर मैं पक्का प्रभु जी 25 लाख डोनेशन दे ही दूंगा, आप मेरे से चेक ले लीजिए। ऐसा नहीं है। एक्चुअली प्रिंसिपल है जो हमको मध्यमा लेवल पे लेके आता है, इसको हमको वैसे देखना चाहिए। मध्यम अधिकारी के लिए बहुत जरूरी है कि ही इज स्पेंडिंग, अदरवाइज व्हाट ही विल डू बाय एक्यूमुलेटिंग सो मच, ही विल एंड अप डूइंग सेंस ग्रेटिफिकेशन। वो नेचुरल रहेगा। आपने देखा होगा इससे पिछले वाले श्लोक में उत्साह निश्चय धैर्यात, और उससे पहले वाले में भी स्पेशली अत्याहार प्रयास। प्रभुपाद जी मैंने आपको बताया था एक चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो है सिंपल लिविंग, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो ये प्लेन लिविंग कब हो पाएगा? व्हेन वी डू नॉट गो फॉर लग्जरीज, वी जस्ट फुलफिल आवर नीड्स एंड डिमांड्स। एंड इसलिए बहुत जरूरी है डिवोटीज को, नहीं तो जैसे ही वो प्लेन लिविंग छोड़ेगा he will get into अत्याहार प्रयास प्रजल्पनी, और फिर उसकी भक्ति डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी। तो मध्यम अधिकारी से एक्सपेक्टेड है कि वो अपनी भक्ति को डिस्ट्रॉय ना करे, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो प्रभुपाद जी यहाँ पे लेके आ रहे हैं अलग से, आप रीड करेंगे तो बिल्कुल आउट ऑफ द कंटेक्स्ट सब बता दिया प्रभुपाद जी ने पहले, बिकॉज प्रभुपाद जी को पता था कि कलयुग में दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, हाउ मच वी आर विलिंग टू स्पेंड 50% of our income on the service of the Lord and his devotees. So therefore it's not because I am telling you, it's because if we feel that we should be advancing to this madhyama level, then our aspiration should be this. Of course 50% डोनेशन देने के लिए नहीं बोल रहे, 50% स्पेंड करने के लिए बोल रहे। मतलब कृष्ण की सेवा में, मतलब कृष्ण को प्रसाद ऑफर करते हैं घर पे,
आप कृष्ण के लिए कुछ माला लेके आते हैं, या फिर कृष्ण के वर्शिप में कोई चीज़ यूज़ करते हैं, और आप कृष्ण के लिए धाम में जाते हैं उनको वर्शिप करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जानी चाहिए। एंड 25% शुड बी केप्ट फॉर रिलेटिव्स, बिकॉज उनके साथ थोड़ा, अभी आजकल शादियां बहुत हो रही, शुरू हो गई है, तो उनको कुछ देना है। एंड 25% की सेविंग करनी चाहिए। ये फॉर्मूला रूप गोस्वामी ने फॉलो किया। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं हमारे को भी सबको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद एक्सपेक्ट करते हैं एटलीस्ट इस्कॉन मूवमेंट जो है मध्यम अधिकारी की मूवमेंट बने, कम से कम। उत्तम अधिकारी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मध्यम अधिकारी तो बने। एंड इसलिए जो 6 लिविंग एक्सचेंजेस है, हमको किसके साथ कैसे एक्सचेंज करने हैं, ये नेक्स्ट वर्स में हमको बताया जाएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी। ठीक है। यस प्रभु, विशाल प्रभु, जल्दी से। हरे कृष्ण। तो ये जैसे कि बताया गया कि बाहर के लोगों से मतलब मेटेरियलिस्टिक और मायावादी इन सबसे मतलब हमें लविंग एक्सचेंजेस नहीं करने, बट तो जब प्रीचिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो होते ही होता है। तो फिर वो धीरे धीरे करके बढ़ता है। ऐसे हम भी कनेक्ट हुए थे, लाइक हम भी पहले भगवान का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं था, तो फिर समझ में नहीं आता कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एंड पे। देखिए, आप आपके साथ जो लिविंग एक्सचेंजेस हो रहे हैं ना, वो मेटेरियलिस्टिक कैटेगरी में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि वो श्रद्धावान लोग हैं। मेटेरियलिस्टिक मतलब वो आर कंप्लीटली इनटू सेंस ग्रेटिफिकेशन। आप देखेंगे जो आपके फ्रेंड्स थे जिन्होंने पिकअप नहीं किया कृष्ण कॉन्शियसनेस, उनके साथ लविंग एक्सचेंजेस किए क्या डिवोटीज ने? जो कैंप में नहीं आ रहे थे, आपने सैटरडे संडे वीकली प्रोग्राम रखा, वो लोग चले गए अपना किसी बाहर खाने के लिए, घूमने के लिए, तो उनके साथ 6 लिविंग एक्सचेंजेस नहीं हुए ना। जो रेडी हुआ सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ने के लिए, है ना, उसी के साथ 6 लिविंग एक्सचेंजेस हुए थे धीरे धीरे। तो वो हमको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। अगर कोई करते जा रहा है फिर भी हम उसके पीछे पड़े तो गलत है। ठीक है। यस। यस संदीप ब्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया कि जैसे जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर जो चीजें हो, उसने उन्हें डिवोटी के साथ एसोसिएशन लेना चाहिए। जैसे कहीं पर चैंटिंग हो सकता है और कहीं पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन। और प्रभु जी, अभी ये भी रहता है कि हमें लाइक माइंडेड जो डिवोटी हैं उनका एसोसिएशन लेना चाहिए, और कभी कभी ये बताया जाता है कि अपने से थोड़े जो सीनियर वैष्णव हैं उनका एसोसिएशन लेना चाहिए। तो प्रभु जी, इन सारे चीजों को एक साथ कैसे कर सकते हैं अगर ऐसा इन्वायरमेंट हमारे साथ ना हो? कैसा एनवायरनमेंट ना हो? जैसे लाइक माइंडेड डिवोटीज साथ में ना हो, अगर ऐसे जगह रह रहे हैं, और फिर कुछ सीनियर वैष्णव जो हैं उनका एसोसिएशन नहीं मिल रहा हो तो? ओके, तो देखिए क्या है, हमको रिप्लेसमेंट उसका यही है कि हमको फिर छुट्टी लेके जाना चाहिए भक्तों के पास, और उनके पास जाके अगर हमको भक्ति में आगे बढ़ना है, मतलब इस लाइक वो प्रिंसिपल है। नहीं तो आप अपने पास भक्त बनाइए, प्रीचिंग करिए वहाँ पे, और प्रीचिंग करके भक्तों को क्रिएट करिए। प्रभुपाद जी ने जो अपने शिष्यों को अलग अलग कंट्रीज में भेजा, वो भी बोल रहे प्रभुपाद एसोसिएशन नहीं, प्रभुपाद ने बोला क्रिएट एसोसिएशन। तो ये बेस्ट है कि आप वहाँ प्रीचिंग करना शुरू करिए, और प्रीचिंग करना शुरू करिए एकदम अच्छे से, अपनी नीड समझ के कि नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा भक्ति में, ऐसे नहीं। तो फिर आप प्रीचिंग करिए, और फिर जब आप प्रीचिंग करेंगे तो ऑब्वियसली आप दूसरे डिवोटीज को इनवाइट करेंगे, तो आपको वो सीनियर डिवोटीज का भी एसोसिएशन मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप उतना नहीं कर सकते हैं, आपको लग रहा है मुझे प्रीचिंग नहीं कर सकता, तो फिर टेक आउट टाइम, टेक सम हॉलीडेज एंड गो एंड बी विद डिवोटीज, है ना, एंड डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी वेर एवर वी आर गेटिंग टू मीट द डिवोटीज। वो करना है। अब आपने बोला कि सीनियर डिवोटीज और एक लाइक माइंडेड, देखिए लाइक माइंडेड डिवोटीज जो होते हैं उनके पास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जाना, उनका अपना रोल है, और सीनियर डिवोटीज के पास जाना अपना इंपॉर्टेंस, मतलब अलग अलग खुराक होती है सबकी, है ना। तो सीनियर डिवोटीज हमको इंस्ट्रक्शन मिलता है, फीडबैक मिलता है, ये सब कुछ मिलता है। तो वो भी अपने लिए जगह ज़रूरी है। कैसा आपको होना चाहिए, तो स्टार्टिंग में बताते हैं, जब हम भक्ति में स्टार्टिंग करते हैं तो जनरली हमको सीनियर्स का ज़्यादा एसोसिएशन लेना चाहिए, 60%, 20% जूनियर्स का लेना चाहिए और 20% इक्वल्स का लेना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे शास्त्र की बुद्धि स्ट्रांग नहीं है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में ज़्यादा चले जाएंगे अगर इक्वल्स का लेंगे। फिर बाद में जब हमको शास्त्र अच्छा हो गया, हम लोग थोड़ा, हमको मध्यम लेवल पे हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, वी आर कन्विंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स, फिर हमको क्या करना चाहिए, फिर हमको इक्वल्स का एसोसिएशन लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो डाइजेस्ट करना पड़ेगा आपको जो भी कुछ सुन रहे हैं। करेक्ट।
तो फिर वो शास्त्र आप पढ़ते रहे, वो सुनते रहिए, लेकिन इक्वल्स का एसोसिएशन ज़्यादा करें, तो इक्वल्स का 60% कर दीजिए, सीनियर्स का 20% और जूनियर्स का 20% कर दीजिए, ठीक है। यस प्रभु, हिरण्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आप पिछले वैसे इस स्लाइड में बता रहे थे कि हमें वो मध्यम अधिकारी वाला लेवल प्रभुपाद जी को चाहते हैं पूरे इस्कॉन में लगभग। तो प्रभु जी, जैसे पूरे इस्कॉन में से अलग अलग स्टेज की डिवोटी अलग अलग उसमें है, तो हम लोगों को जैसे गोल क्या रखना चाहिए प्रेजेंट टाइम में प्रभु जी, और कैसे उसको धीरे धीरे अचीव कर सकते हैं? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि सब लोग प्रोग्रेसिवली ग्रो करें, तो हमारा गोल तो ये रहना चाहिए कि मध्यमा लेवल पे आए, हैंड रेस करके रखें जिससे मेरे को दिखते रहे। ये पहला गोल होना चाहिए। कहाँ है आपका हाथ? हाँ। तो क्योंकि क्या है ना ब्रो, अगर हम मध्यमा लेवल पे नहीं आएंगे ना, तो जैसे ही कोई डिवोटी प्रोग्रेस करेगा तो हम क्या करेंगे, उसमें फॉल्ट फाइंडिंग शुरू कर देंगे, क्रिटिसिज्म शुरू कर देंगे, बैक बाइटिंग शुरू कर देंगे, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे। और फिर क्या है, वो ये जो इतनी अच्छी सोसाइटी, ये क्या हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी। तो हमारे सोसाइटी को एज अ सोसाइटी अगर हमको चलना है आगे, तो वी हैव टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ आवर सोसाइटी मेंबर्स टू मध्यमा लेवल। और वो मध्यमा लेवल देख के जब बाहर के लोग अट्रैक्ट होंगे ना, देन दे विल आल्सो क्विकली पिक अप दिस लेवल ऑफ मध्यमा, बिकॉज दे विल गेट अट्रैक्टेड टू सच काइंड ऑफ थिंग। वो ही हुआ है ना, बहुत सारी कम्युनिटीज में जहाँ पे डिवोटीज का लविंग एक्सचेंज बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे क्या है, डिवोटीज आके देखते हैं इतने अच्छे लविंग एक्सचेंज है, तो दे बिकम वेरी सीरियस, अंडरस्टैंडिंग। तो दैट्स व्हाई प्रभुपाद इज टेलिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। अब उसमें हम टिके रहेंगे भक्तों के साथ में ना, तो ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इसलिए मध्यमा लेवल पे आना है। स्टार्टिंग में हो सकता है डिवोटी कनिष्ठ पे, बट ही शुड एस्पायर फॉर कमिंग टू मध्यमा, ठीक है। यस प्रभु जी। प्रभु जी, थोड़ा सा एक और इसमें क्वेश्चन। तो प्रभु जी, जैसे मटेरियलिस्टिक लोग भी अगर बाहर के अगर वो भक्ति नहीं करते हैं, और ऐसा सोसाइटी है जिसमें एक दूसरे का सुनते हैं और अपोज नहीं करते, तो वहां से भी लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तो भक्तों के समाज में तो होंगे ही। तो प्रभु जी, रीजन क्या आ जाता है प्रभु जी, मतलब कि मतलब लविंग एक्सचेंज नहीं हो पाता, या फिर इनमें क्या बाधा आ जाती है जो सेक्स एक्सचेंज नहीं होते? बहुत सारे हो सकते हैं, सारे डिवोटीज इसमें इनपुट दे सकते हैं, क्यों लविंग एक्सचेंज नहीं हो रहे। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज ऑल ऑफ यू काइंडली गिव आंसर्स टू हिरण्मय प्रभु इन चैट और बाय अनम्यूटिंग। क्यों लविंग एक्सचेंजेस नहीं हो रहे हैं डिवोटीज के बीच में? ईगो की वजह से नहीं होते हैं प्रभु जी, ठीक है। ईगो बहुत स्ट्रांग रहता है, इसलिए नहीं हो पाते हैं। फ्रूटी मेंटालिटीज। एनवी की वजह से भी नहीं होते। फ्रूटी मेंटालिटी होता है, फॉल्स ईगो रहता है, कनिष्ठ टेंडेंसी हमारे अंदर। हम अपनी सेवा में बहुत बिजी है, उसको लग रहा है कि मैं सेवा कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं नहीं कर रहा, लेकिन उसको लगता तो है कम से कम मैं सेवा कर रहा हूँ। और कुछ? ठीक है। आई वुड से कि this six loving exchanges, as one of the answer came, if somebody wants to grow in the madhyama level, अगर कोई सही में श्रवण कीर्तन करके भक्तों का संग करके उसके अंदर ये सही में इच्छा जागृत हुई है कि मेरे को भगवताम जाना है या प्यूरिफाई होना है, गोपी भर्तुल पद कमलोर दास दासानुदास बनना है, जैसी वो ये इच्छा करेगा ना, तो वो फिर उसको लविंग एक्सचेंजेस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये क्यों नहीं हुआ है? तो मेरा आंसर ये है, इग्नोरेंस। वी आर नॉट अवेयर अबाउट द प्रोसेस। तो इसलिए हमको बुक्स पढ़नी चाहिए, NOI NOD, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, जहाँ पे हमको पता चलता है कि हमारा प्रोसेस क्या है। हम अज्ञानता में, तत्व विभ्रम में, हमको तत्व ही नहीं पता है कि हमारी साधना भक्ति है क्या, कैसे करनी है। हमको कुछ तो पता चल गया भक्ति का। ईगो वो तो बाद में भी रहेगा, ऐसा नहीं मध्यम अधिकारी का ईगो नहीं रहेगा, उसके अंदर मेंटली टेंडेंसीज नहीं, वो सब रहेगी। लेकिन इग्नोरेंस है, हम लोग पढ़े नहीं है शास्त्र, हम लोग जाने नहीं। अभी देखो प्रभुपाद जी ने इतना क्लियर क्लियर लिख दिया है, तो अगर कोई पढ़ेगा ही प्रभुपाद जी की बुक्स तो उसको पता चल जाएगा, अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है उसको। तो इसलिए मेन चीज है, इग्नोरेंस है। वो अपने इग्नोरेंस को बढ़ाएं, है ना। अपना इग्नोरेंस को ना बढ़ाएं, नॉलेज को बढ़ाएं, है ना, और इग्नोरेंस को दूर करें, ठीक है। यस, थैंक यू प्रभु जी। Thank you very, very much, dear devotees, for your patient hearing and enthusiastic participation. Tomorrow we'll start the next verse with whom we should do these six loving actions. Thank you. Srila Prabhupada ki jai, Srila Rupa Goswami Pad ki jai, Anuvai ki jai. Nitai Gaur Premanande.